Hello children, welcome to our EVS class. So beta, I hope you all are fine and safe at home. So in EVS, our chapter number 3 that is over. Yes or no? Yes. So after chapter number 3, which chapter will come? Yes, chapter number 4. So today in this lecture, I am going to start chapter number 4 in EVS. So what is the name of chapter number 4? So our chapter number 4 is the story of Amrita. Yes. So beta, this is very good and nice story. Okay. Yes. So everyone tell me, are you excited to read this story, the story of Amrita? Okay, fine. So now let's see this story, the story of Amrita, and let's see what is given here in this story. Okay, fine. So now let's see what is given here in this chapter. So the story of Amrita. Yes. So now let's read the story of Amrita. Yes. So this is a true story from long long ago. Yes. Now here what is saying to us? So here saying to us ke this is a true story from long long time ago. Almost 300 years ago in a village called Khejri lived Amrita. Yes. Now here what is saying to us? So here saying to us ke almost 300 years ago there was one village, and what was the name of that village? So the name of that village was Khejri. Okay, and in that village, in Khejri village, there was one girl, and what was her name? Her name was Amrita, and she was lived in this village, means in Khejri village. Fine. Yes, Khejri village is near Jodhpur in Rajasthan. Yes, and where is Khejri village? So Khejri village, that is near Jodhpur in Rajasthan. Okay, the village got its name because of the many khejuri trees that grew there. Yes. Now here what is saying to us? So here saying to us ke the village, means this village got its name. This village got khejuri names because of many khejuri trees that grew there. क्योंकि वहाँ पे ये जो खेजड़ी विलेज है वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज होते हैं. ठीक है, और उसके ऊपर से ये जो विलेज है उसका नेम क्या पड़ा? खेजड़ी पड़ा. ठीक है. यस, एक्चुअली बेटा खेजड़ी दैट इज द नेम ऑफ ट्रीज, बट ये जो खेजड़ी विलेज है उसका जो नेम है वो इसी ट्री पर से पड़ा है. ठीक है, खेजड़ी ट्री पर से. Yes. Now, the people of this village took great care of the plants, trees and animals. Wow. Now here what is saying to us? So here saying to us ke the people of this village, इस village के जो people हैं, the people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goats, deer, hares and peacocks roam fearlessly there. Yes. Now here what is saying to us? Here saying to us के यहाँ पे जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि गॉड्स, डियर, हैट्स एंड पिकॉक्स. ठीक है, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे ऐसे बिना डर के ये लोग क्या करते हैं? रोमिंग करते रहते हैं. वाई? बिकॉज यहाँ के जो पीपल हैं, ठीक है, वो प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स की बहुत अच्छे से केयर करते हैं. दैट्स वाई गॉड्स, डियर, हैट्स एंड पिकॉक्स एंड ऑल्सो अदर एनिमल्स रोम fearlessly there. The people of the village remembered what their elders used to tell them. Yes, और यहाँ के जो people हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद है कि उनके जो elders थे वो क्या कहते थे. They used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. Yes, और जो यहाँ खेजड़ी विलेज के जो people हैं उनके जो elders थे वो क्या कहते थे? सो वो हमेशा ये कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. Yes, और उनके जो elders थे वो ये भी कहते थे कि plants and animals can survive without us. जो plants और animals है वो तो हमारे बिना survive कर सकते हैं, वो तो हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं, but we cannot survive without them. So बेटा, why we cannot survive without plants and animals? Because we get so many things from plants and animals. ठीक है, हमारे survive की जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें कहाँ से मिलती है? That we get from plants and animals. Okay, that is why we cannot survive without them. ठीक है, सो ये जो एल्डर्स थे वो सही बोलते थे, है ना, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हमारे बिना रह सकते हैं बट हम उनके बिना नहीं रह सकते. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. फाइन. नाउ हियर वन पिक्चर हैज गिवन हियर बेटा, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ खेजड़ी ट्रीज. जो खेजड़ी ट्रीज है वो ऐसे ही दिखते हैं. फाइन. नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज वन मोर
picture has given here. Fine. Now let's see downsides. So Amrita's friend. Now let's see okay, what is saying to us here about Amrita's friend. So Amrita would get up early every morning and greet her friends the trees. Yes. Now here what is saying to us? So here saying to us कि Amrita would get up early every morning और उसके बाद वो क्या करती थी, उसके जो फ्रेंड्स होते थे उनको ग्रीट करती थी, मतलब गुड मॉर्निंग विश करती थी. एंड उसके फ्रेंड्स कौन थे? द ट्रीज. शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. यस, और वो हर एक दिन के लिए एक स्पेशल ट्री जो है वो चूज करती थी उसको ग्रीट करने के लिए. फाइन. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. यस, और उसकी और जो है जो अमृता है, जो अमृता थी वो जो ट्रीज थे उसके जो फ्रेंड थे उनको कैसे ग्रीट करती थी. सो वो क्या करती थी, उसके आर्म जो होते थे उसके आर्म से जो ट्री का ट्रंक होता था उसको क्या करती थी, ऐसे पकड़ लेती थी. ठीक है. एंड विस्पर टू द ट्री, और धीरे से फुसफुसा के, विस्पर मीन्स फुसफुसाना या फिर धीरे से बोलना. ठीक है. और धीरे से ट्री को बोलती थी कि फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री. उसके बाद थैंक यू भी बोलती थी. आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. येस, और उसके बाद वो बोलती थी कि आई लव यू वेरी मच एंड ये जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ तुम मुझे भी दो. और ऐसे करके एवरी डे वो उसके जो फ्रेंड्स थे, जो ट्रीज थे, उनको उसको क्या करती थी, ग्रेट करती थी, गुड मॉर्निंग विश करती थी. Fine. Yes, like Amrita, the other children also had their special trees. Yes, जैसे अमृता का स्पेशल ट्री होता था, हर रोज वो एक स्पेशल ट्री चूज करती थी उसको ग्रीट करने के लिए, ऐसे वहाँ जो अदर चिल्ड्रन थे, ठीक है, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड दियर स्पेशल ट्रीज. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज. यस, और वो जो चिल्ड्रन थे वो आवर्स तक, घंटों तक जो ट्रीज की जो शेडो होती थी उसमें क्या करते थे, प्ले करते थे. फाइन. Yes. Now on next page. So beta on this page also one picture has given here, and this is the picture of khejri trees. Okay, khejri tree. Now let's see after that what happened. So trees in danger. Yes. Now one day what happened? एक दिन क्या हुआ, जो trees थे वो danger में थे, खतरे में थे. So now let's see after that what happened. So time went by. जो time है वो बीतता गया. अमृता was now grown up. अब जो अमृता थी वो बड़ी हो गई थी, अब वो छोटी नहीं थी. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, और जैसा कि वो हमेशा से ही करती थी, और एक दिन क्या हुआ कि वो जो ट्रीज होते हैं उनको ग्रीट करने जाती है, मॉर्निंग में मॉर्निंग विश करने जाती है. शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज. नाउ व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंजर्स बेटा? सो स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, मतलब जो अनजाने होते हैं, जिनको हम नहीं जानते. तो अनीता अमृता जो है जब वो मॉर्निंग में ट्रीज को जब ग्रीट करने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं विलेज में उसके यहाँ वहाँ. दे हैड एक्सेस विद देम. नाउ हियर व्हाट इज मीन बाय एक्सेस? सो बेटा एक्सेस एक्चुअली वन टाइप ऑफ टूल जिसका यूज ट्रीज को कट करने के लिए किया जाता है. ठीक है. तो जो अमृता है वो देखती है कि वो जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके हैंड में क्या है, एक्सेस है. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड. और ये जो स्ट्रेंजर्स आए थे उसके विलेज में, उन्होंने बताया कि वहाँ के जो किंग है उन्होंने उनको मीन्स किंग ने उनको भेजा है ट्रीज को कट करने के लिए, और उनको क्या चाहिए, वुड चाहिए ट्री की. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. यस, और उन्होंने ये भी बताया कि उनको वुड इसलिए चाहिए बिकॉज जो किंग का पैलेस है वो बनाना है. दैट्स वाई किंग ने उनको परमिशन दी है, किंग ने उनको भेजा है ये ट्रीज कट करके वुड लाने के लिए. ठीक है. सो बेटा हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि किंग इज देयर एंड स्ट्रेंजर्स आर देयर. ठीक है. एंड एज वी कैन सी कि जो किंग है वो मीन्स इनको कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है. एंड इनके जो हैंड्स है उसमें एक्सेस भी है, टूल भी है ट्री को कट करने वाला. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस. फाइन. यस. नाउ लेट्स सी आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड. सो अमृता वाज शॉक्ड, और ये सुनने के बाद तो क्या हुआ, अमृता जो है वो शॉक्ड हो गई. शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट. उसके बाद वो जो मैन रहते हैं, वो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, ठीक है, वो जिस ट्री को कट कर रहे होते हैं या फिर कट करने जाते हैं, वो जो अमृता रहती है उस ट्री के पास वो जल्दी से चली जाती है. शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली. और उसके बाद वो क्या करती है, वहां पे जाके जो ट्री को स्ट्रेंजर्स कट करने जाते हैं वहां पे जाके वो उसके जो आर्म्स होते हैं तो उससे टाइटली क्या करती है, ट्री को ऐसे हग कर लेती है, ऐसे पकड़ लेती है. द मैन शाउटेड एंड
threatened her, but Amrita did not let go to the tree. Now here what is mean by threat? तो threat का मतलब होता है धमकी देना, ठीक है. So जब अमृता ऐसा करती है, जिस ट्री को वो लोग कट करने जाते हैं और उसी ट्री को वो जाके ऐसे तेजी से टाइटली पकड़ लेती है, तो ये जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे शाउट करते हैं और उसको धमकी भी देते हैं. बट जो अमृता रहती है, अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, लेकिन वो उस ट्री को छोड़ के जाती ही नहीं है, ठीक है. द किंग्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना, इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि जो अमृता है उसने तेजी से वो ट्री को हक किया है, और जो स्ट्रेंजर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सेस चलाने जा रहे हैं, मतलब ट्री को कट करने जा रहे हैं, ठीक है. यस, द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज हॉट ऑर्डर, ठीक है. लेकिन अब जो किंग के जो मैन थे, जो स्ट्रेंजर्स थे, वो भी रुके नहीं. वो उन्होंने भी क्या किया, वो भी किंग के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, मतलब वो भी ट्री को कट करने लगे. दे हैड टू कट द ट्री, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ट्री को कट करना स्टार्ट कर दिया. ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hug the trees to protect them. और जब ऐसा होता है तो ये देखने के बाद जो दिस अमृता's डॉटर, अमृता की डॉटर, और वहाँ पे जो 100 के आसपास जो वहाँ के विलेजर्स होते हैं, जिसमें ओल्ड एंड यंग सभी मिक्स होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, अमृता की तरह ट्री को क्या कर लेते हैं, ऐसे तेजी से हक कर लेते हैं. क्यों हक कर लेते हैं, ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे वो स्ट्रेंजर से वो उसको कट ना कर सके. फाइन. यस, सो बेटा हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि बहुत सारे जो विलेजर्स हैं, सभी ने ट्री को क्या किया है, हक करके रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे टाइटली बिल्कुल पकड़ के रखा है. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. Oh my God! After that, what happened? After that, ये जो अमृता थी, उसकी डॉटर और जो थी, उसके अलावा भी बहुत सारे जो विलेजर्स थे, वो सब क्या हो जाते हैं, ट्री को बचाने में वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो डाइड हो जाते हैं. जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको वो मार देते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. Fine. When the kings heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. और जब किंग को ये सारी बातों का पता चलता है कि जो विलेजर्स हैं वो ट्री को कट नहीं करने दे रहे हैं, और अपनी जो है वो लाइफ देने के लिए भी, अपनी जान देने के लिए भी रेडी हैं, तो ये सुनने के बाद जो किंग है उसको बिलीव नहीं होता है कि मीन्स ऐसा क्यों है, क्या है ऐसा ट्रीज में, क्यों वो कट नहीं करने दे रहे हैं. ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ. उसके बाद जो किंग होता है वो खुद विलेज की विजिट करता है. देयर ही लर्नड अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स. और वहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि विलेजर्स जो है वो ट्रीज को कट इसलिए नहीं करने दे रहे हैं बिकॉज वो ट्रीज और एनिमल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए ये ट्रीज और एनिमल्स को कुछ भी नहीं होने देंगे, भले इनकी जान चली जाए, ठीक है. द विलेज इज प्रोटेक्टेड, एंड फाइनली क्या होता है, जो विलेज वो प्रोटेक्टेड मीन्स बच जाता है. अब कैसे बच जाता है, कैसे प्रोटेक्ट होता है, सो नाउ लेट्स सी. द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली. यस, सो ये विलेजर्स की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ट्रीज के लिए, वो किंग को क्या करती है, बहुत अफेक्ट करती है, बहुत उसको प्रभावित करती है. इससे जो किंग होता है वो बहुत हैप्पी होता है, विलेजर से बहुत खुश होता है. ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन no tree would be cut and no animals would be harmed in that area. उसके बाद उस दिन जो वहाँ का किंग होता है वो मीन्स ऑर्डर ऐसा देता है कि आज के बाद ये जो एरिया है, जो खेजड़ी विलेज है, ठीक है, आज के बाद ना ही यहाँ पे कोई ट्रीज कट किए जाएंगे और ना ही किसी भी एनिमल को कोई हार्म, कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा. इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later the people of this area called बिश्नोइज, ओके, और यहाँ तक कि अभी भी लगभग इस चीज़ को, ये जो मीन्स ये जो हुआ था अमृता का, ठीक है, इसको हुए लगभग अभी कितने ईयर्स हो चुके हैं, 300 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है. सो 300 ईयर बाद भी ये जो एरिया है और यहाँ के जो लोग हैं विलेजर्स खेजड़ी विलेज के, दे आर नोन एज बिश्नोइज पीपल, ठीक है, इनको बिश्नोई के नेम से जाना जाता है. सो कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. ये लोग अभी भी, यहाँ के जो विलेजर्स हैं, 300 ईयर्स हो गए ये जो ये हुआ था अमृता का, ठीक है, इस चीज़ को हुए, लेकिन अभी भी यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं. इवन दो इन मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम
freely without fear. Yes, now here what is saying to us? Here saying to us के सी, अब ये जो खेजड़ी विलेज है, ये खेजड़ी विलेज कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान का एरिया कैसा होता है? डेजर्ट एरिया होता है, ठीक है। तो ये डेजर्ट एरिया होने के बाद भी ये जो खेजड़ी विलेज है, ये खेजड़ी विलेज का जो एरिया है वो कैसा है? बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीनरी है वहाँ पे। और एनिमल्स जो है अभी भी वहाँ पे जो फ्रीली है वो क्या करते हैं? यहाँ से वहाँ सारे एनिमल्स फ्रीली टहलते रहते हैं, ठीक है। यस, now on next page, so beta here also you can see one picture has given here, and this is the picture of khejdi tree. Okay, so the khejdi tree is found mainly in desert areas. Yes, now here what is saying to us? Here saying to us के the khejdi tree is found mainly in desert area. desert area में ही पाए जाते हैं ये mostly. It can grow without much water, और इनको grow करने के लिए बहुत ज़्यादा water की भी ज़रूरत नहीं होती. Its bark is used for making medicine. bark बाग का मतलब होता है इनकी जो छाल होती है ट्रीज की, ठीक है, खेजड़ी ट्रीज की, दैट इज कॉल्ड बार्क. ओके, सो इट्स बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. इसकी जो बार्क है उसका यूज मेडिसिन बनाने के लिए होता है. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट, और इसका जो फ्रूट होता है दैट इज कॉल्ड बीन्स, ठीक है. सो जो पीपल हैं तो इस खेजड़ी ट्री का जो फ्रूट होता है उसको कुक करके भी खाते हैं और ऐसे भी खाते हैं, ठीक है. इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स. यस, और इस ट्री की जो वुड होती है वो इतनी अच्छी होती है कि कोई भी इंसेक्ट उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको खराब नहीं कर सकता है. एनिमल्स इन दिस एरिया एट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी. यस, और इस एरिया के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स इन दिस एरिया एट द लीव्स ऑफ खेजड़ी. खेजड़ी की लीव्स खाते हैं वो लोग. एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो खेजड़ी ट्री की जो शेडो होती है, जो शेड होता है उसका, उसमें उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. सो हियर बेटा ये जो हमारा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ अमृता वो यहाँ पर फिनिश होता है. सो नाउ लेट्स सी मोरल ऑफ द चैप्टर. सो नाउ एवरीवन टेल मी बेटा व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस चैप्टर, अ स्टोरी ऑफ अमृता. ये जो चैप्टर इसका मोरल क्या है? मोरल ऑफ दिस चैप्टर इज सेव ट्रीज. वी शुड सेव ट्रीज. व्हाई? बिकॉज दे हेल्प अस इन मैनी वेज. हमें ट्रीज को सेव इसलिए करना चाहिए बिकॉज ये जो ट्रीज हैं वो हमें बहुत तरीके से, अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं. फाइन. यस, सो हियर ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता, वो यहाँ पर फिनिश होता है बेटा. सो आई होप कि आप लोगों को इजीली एंड अच्छे से पता चला होगा. सो बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.